Think Sakshar, where every clue begins with learning. Hello everyone, welcome to this learning journey with Think Sakshar. I am Charu Saini, forensic biologist and your educator for the subject forensic biology. So the topic for today's video is biological evidence. Biological evidence is divided into several parts. So first part is crime scene investigation of biological evidence. So let's move to the content slide. Today, we'll discuss about protection of crime scene, recognition of biological evidence, searches, documentation, chain of custody, collection of biological evidence, marking evidence, packaging and transportation, final survey and the release of crime scene and crime scene reconstruction. So, what is crime scene investigation? Crime scene investigation is the searching, investigation, and proper steps that are covered to search about, to investigate about a crime scene. Crime scene investigation starts, it begins at the crime scene itself. When we reach at the crime scene investigation begins there. So, there are some steps in this. These steps are like crime scene investigation include first of all maintaining scene security. First is the protection of the crime scene. First we have to secure the crime scene. The yellow color tape you can see in the picture is the cordon tape, which is used to secure the crime scene and to set the boundaries of the crime scene to restrict the entry of individuals. Second is preparing documentation. Preparing each and every record about the crime scene is really very important. Third is collecting and preserving physical evidence. Now we will discuss these points into detail. First is protection of crime scene. Securing and protecting the scene are important steps in crime scene investigation, carried out by the first responding officer arriving on the crime scene. फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर कौन होता है? जो सबसे पहले क्राइम पे रिपोर्ट करता है, मतलब एक अथॉरिटी. ये नहीं कि कोई इंसान आ रहा है जिसने वो देखा है, जिसने वो क्राइम सीन देखा है, जिसने वो एक्सप्लोर किया है, वो ही फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर है. नहीं, जो कोई अथॉरिटी होती है, जैसे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, तो उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर कहा जाता है. जिसको भी वो क्राइम जो है, उस एरिया के क्राइम अलॉट होते हैं उनको. एंड वो एक पुलिस ऑफिशियल होता है. तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्राइम सीन सिक्योरिटी लॉग शीट दिखाई है. ये लॉग शीट जो है, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन के लिए. इस लॉग शीट में सब कुछ लिखा जाता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस टाइम पर आ रहा है, किस टाइम पर जा रहा है, और उनकी ड्यूटीज़ क्या है क्राइम सीन पर. ठीक है. और कंटेमिनेशन जो है वो क्या है, देखो नेम एंड रैंक भी लिखा है, इनिशियल्स भी लिखे हैं. इनिशियल सपोज इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्टर, उसके आगे जो उसका नेम है उसके इनिशियल्स लिखे जाएंगे. इस तरह से ये लॉग शीट भरी जाती है और ये इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कि वी कैन सी इन दिस इमेज, येलो जो कॉर्डन टेप है उससे क्राइम सीन को सिक्योर किया गया है. अंदर एक फोटोग्राफी कर रहे हैं इंडिविजुअल जिन्होंने प्रोटेक्शन किट पहनी है, और दो में वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट कह सकते हैं, वो है. नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस. तो बायोलॉजिकल एविडेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करें, क्योंकि क्राइम सीन पर तो काफ़ी सारी चीज़ है, तो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि एविडेंस क्या है, और इम्पॉर्टेंट एविडेंस जिससे हम एनालिसिस करेंगे वो क्या है. A preliminary survey should be carried out to evaluate potential evidence. Potential evidence क्या होता है? Potential evidence is something that is of our value to solve any crime. Then the evidence related to a corpus delicti is considered to be of the highest priority. So what is corpus delicti? Corpus delicti is a Latin word which means body of crime. Body of crime, जहाँ पे crime हुआ है, that is corpus delicti. Next is victim to scene and perpetrator to scene linkages can also be established. तो victim का crime scene के साथ linkage और perpetrator that is जिसने क्राइम किया है उसका क्राइम सीन के साथ लिंकेज, ये सारे इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस. अगर हमें वहाँ पे ब्लड मिलता है और वो विक्टिम का होता है, तो हाँ हम बता सकते हैं कि ये विक्टिम ये जो इंडिविजुअल है ये यहीं पर इसी क्राइम सीन पर पाया गया है. ठीक है. वैसे ही अगर हमें
परपेट्रेटर या फिर जो हमारा सस्पेक्ट होता है उसकी कोई भी बिलोंगिंग हमें क्राइम सीन पे मिलती है तो हम उसको लिंक कर सकते हैं कि हाँ ये क्राइम सीन पर उस टाइम पर थे, ठीक है। उसके बाद है अ परपेट्रेटर में प्रेजेंट अ यूनिक मोडस ऑपरेंडाई। सो मोडस ऑपरेंडाई क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ लैटिन वर्ड विच मीन्स मोड ऑफ एक्शन, मतलब कि एक क्रिमिनल के क्राइम करने का तरीका इज़ मोडस ऑपरेंडाई, मतलब कि वो किस तरह से करता है। सपोज़ जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक फेमस क्रिमिनल टेड बंडी का, इनका केस आप ज़रूर स्टडी कीजिए। टेड बंडी एक सीरियल किलर है। इन्होंने क्या किया था कि ये अपने विक्टिम्स को, लाइक इनके विक्टिम्स होते थे यंग वुमेन, उनको ये सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डअप करते थे, ठीक है। उसके बाद उनको बाइंड करते थे, उसके बाद उनको सेक्सुअली असोल्ट करते थे। तो ये इनका एक मोड था क्राइम कैरी करने का। फर्स्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, देन बाइंडिंग एंड देन सेक्सुअल असोल्ट। नेक्स्ट इज सर्चेस। सम इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर अ सर्च. Searching for biological stains usually utilizes devices such as an alternate light source. तो जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है सर्च मेथड से। अब सर्च मेथड्स हैं यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज स्पायरल सर्च मेथड। इसमें हमारा अगर आउटडोर क्राइम सीन है तो उस पर स्पायरली मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रिड मेथड है। ग्रिड मेथड में हम 2 एक्सेस में मूव करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सेस में, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रिप और लाइन सर्च मेथड। इसमें हम लाइन में मूव करते हैं स्ट्रेट और अपने एविडेंस की सर्च करते हैं। फोर्थ है क्वाड्रेंट और जोन सर्च मेथड। इसमें हम अपने क्राइम सीन को सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम सीरियल वाइज फर्स्ट सेक्शन को सर्च करते हैं, फिर सेकंड सेक्शन को सर्च करते हैं, फिर थर्ड को, एंड जस्ट लाइक फोर्थ। इससे क्या होता है कि हमारा जो क्राइम सीन है वो स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है और हम इजीली सर्च कर सकते हैं हमारे स्मॉल एविडेंसेस को या फिर ट्रेस एविडेंसेस को। ट्रेस एविडेंस क्या होते हैं? जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं क्राइम सीन पर। नेक्स्ट इज अल्टरनेट लाइट सोर्स। अल्टरनेट लाइट सोर्स होती है हमारी एक टॉर्च के फॉर्म में होती हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं जैसे उन एविडेंसेस को देखने के लिए जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब जो ये इमेज है इसमें जो ये ग्लो कर रहा है ये ब्लड स्टेन है। अगर ब्लड स्टेन क्राइम पर था और उसको वॉश कर दिया गया है, लाइक लिटरली क्लीन कर दिया गया है, तो एक रिएजेंट होता है ल्यूमिनॉल रिएजेंट, जो ब्लड में हीम के साथ रिएक्ट करके ये ग्लोइंग कलर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम जो वॉश्ड आउट ब्लड, जो क्लियर ब्लड स्टेन्स है उनको भी विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दैट इज स्केचेस, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। डॉक्यूमेंटेशन करना पूरे क्राइम सीन की हर एक एविडेंस की इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड इन कोर्ट। तो जो आप साइड में देख सकते हैं ये एक तरह का स्केच है, ये फाइनल स्केच है। 2 तरह के स्केचेस होते हैं, रफ स्केच और फाइनल स्केच। ये फाइनल स्केच है, इसमें दिखाया गया है कि बॉडी कहाँ पे मिली है और जो घर था, जो इंडोर क्राइम सीन था, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। इसकी मदद से हम अपना क्राइम केस है हम उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, और ये हमें क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है। क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्शन में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी क्या होता है। जो नीचे है ये हमारे रूलर्स हैं। ये जो रूलर्स हैं, ये स्केल्स हैं, डिफरेंट शेप्स के हैं और ये यूज़ होते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में। फोटोग्राफी में अगर हमारा कोई स्टेन है, सपोज ब्लड स्टेन है, उसके साइड में हम ये स्केल रखेंगे, बिकॉज हमें ये भी देखना है कि वो जो ब्लड स्टेन है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज गन है, वेपन है, तो उसके साइड में हम स्केल रखेंगे देखने के लिए कि वो कितना बड़ा है। बिकॉज अगर हम फ़ोटोज़ लेंगे, फ़ोटोज़ तो कैसी भी हो सकती हैं, जूम्ड हो सकती हैं, दूर से हो सकती हैं, तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ तो नहीं पता लगती, तो उसके लिए हमें स्केल रखना पड़ता है। तो जो हमारी वीडियोग्राफी होती है और फोटोग्राफी होती है, ये 3 टाइप्स की होती है, क्लोज रेंज, मिड रेंज और फार रेंज। उसके बाद है चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इट इज़ अ chronological documentation of the crime scene, like each and every activity which is carried out on the crime scene. ये एविडेंस है, ठीक है, ये किसकी कस्टडी में है, ये एविडेंस कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे जा रहा है, वो सारा चेन ऑफ कस्टडी में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाता है?
किया जाता है। फर्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं एक प्लास्टिक बैग है, एक पेपर बैग है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में हम अपना एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्वैब्स होते हैं, उनको हम एक पेपर में फ़ोल्ड करके इसमें डाल सकते हैं। मतलब कि जिस तरह का एविडेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी पैकेजिंग होगी, ठीक है। अब ये हमारे शार्प ऑब्जेक्ट हैं। शार्प ऑब्जेक्ट हम ऐसे कार्टन में स्टोर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, जैसा आप साइड में इमेज में देख सकते हो। ये है हमारी कलेक्शन फॉर फ्लूइड्स, बायोलॉजिकल एविडेंस। जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड अगर ड्राई है, ठीक है, तो उसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे? स्वैब की मदद से कटिंग कर सकते हैं। अगर वो पूरा ड्राई हो गया तो वो कट हो जाएगा। स्क्रैपिंग होती है, ठीक है, शार्प स्क्रेपल होता है या फिर ब्लेड होता है, उससे ऐसे ऐसे स्क्रैप करना, ठीक है। लिफ्टिंग होती है, लिफ्टिंग हम करते हैं टेप की मदद से। अगर कोई भी एडहेसिव टेप है तो हम उसको इसके लिए स्पेशल एडहेसिव टेप आती है। एडहेसिव टेप को हम सरफेस पे लगाएंगे और उसके बाद उसको रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर हमारा स्टेन आ जाएगा। उसके बाद है हमारा अगर कोई आइटम है उसके ऊपर पूरा ब्लड है और वो ड्राइड है तो हम स्मॉल आइटम को ऐसे ही कलेक्ट कर सकते हैं। वेट ब्लड को हम कैसे कलेक्ट करेंगे? स्वैब से और एफटीए पेपर से। एफटीए पेपर एक काइंड ऑफ पेपर होता है जिस पे हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। रेफरेंस लिक्विड ब्लड सैंपल, इट इज़ अ स्टैंडर्ड सैंपल विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द human itself if he or she is there. Next is semen. Semen, if it is dry or wet, it is same collected in the similar way as blood. और बाकी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको एज इट इज़ कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा वजाइनल फ्लूइड। ये भी सेम ब्लड की तरह कलेक्ट होगा। हेयर्स है, हेड हेयर्स है, प्यूबिक हेयर्स है, उनको लिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं अगर स्मॉल पीसेस में प्रेजेंट है। फिंगर नेल्स और स्क्रैपेज, ये टिप्स होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सेक्सुअल असोल्ट में जब स्क्रैचिंग की जाती है या कुछ भी, या फिर हम किसी के ऊपर स्क्रैच करते हैं तो इसमें टिश्यू सेल्स आ जाती हैं, तो नेल स्क्रैपिंग्स उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। डीएनए एनालिसिस में हेल्प करती है। बोन्स, टीथ, tissue and organs, DNA database samples, these all are collected as a biological evidence. नेक्स्ट इज मार्किंग एविडेंस। तो एविडेंस को हमने कलेक्ट तो कर लिया, अब उसको मार्क करना भी ज़रूरी है कि हम उसको इवन आफ्टर ईयर्स भी पहचान पाए। तो हम उसको कैसे मार्क करेंगे? हम उस पर लिखेंगे आइटम नंबर, केस नंबर, ये और इन्वेस्टिगेटर का इनिशियल। ये तीनों चीज़ें लिखी जाती हैं एविडेंस पे, जिससे हम पता कर सकें कि एविडेंस कौन से केस का है, उसमें क्या है और कौन से इन्वेस्टिगेटर ने उसको कलेक्ट किया था या डिस्कवर किया था। Then we have packaging and transportation. Packaging and transportation is important because we have to transport the evidence to lab in proper and protective manner. Then final survey and the release of crime scene. सब कुछ करने के बाद, फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ करने के बाद हम एक बार एनालिसिस करेंगे, टैली करेंगे अपने लॉग शीट के साथ कि कुछ मिसिंग तो नहीं है, और उसके बाद हम क्राइम सीन को रिलीज़ कर देंगे। नेक्स्ट वी है क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्शन। क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्शन क्यों करते हैं? क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं जिससे हम सारे इवेंट्स को जो क्राइम सीन पर हुए हैं उन्हें एनालाइज करके पता लगा सकें कि क्राइम सीन पर एक्चुअली हुआ क्या था। बिकॉज़ हम वापस से टाइम मशीन में जाके तो सब कुछ नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमारे एक मेथड्स है। पहला है क्राइम सीन इन्फॉर्मेशन, क्राइम सीन को देखते हुए हमें वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सेकंड, क्वेश्चन फॉर्मुलेशन। क्वेश्चन फॉर्मुलेशन, हम क्वेश्चन बनाएंगे कि ये एविडेंस हमें यहाँ पे क्यों मिला, यहाँ पे क्या हुआ होगा कि हमें ये यहाँ पे मिला है, मतलब कि क्राइम सीन पर हुआ कैसे है। अगर कोई विक्टिम बॉडी है तो ये बॉडी यहाँ पे कैसे आई होगी, ठीक है। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। तो इसके लिए हम सारी इन्फॉर्मेशन फिर से कलेक्ट करेंगे कि हाँ, हम सारी चीज़ों को एक सीरियल वाइज लगाएंगे कि लॉग शीट जो हमने बनाई है, डॉक्यूमेंटेशन जो हमने सारी करी है, सबको एनालाइज करके हम फिर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है कि ये अपने आप से सोचना, इवेंट्स को देखते हुए, मतलब कि एविडेंसेस को देखते हुए कि वहाँ पे हुआ क्या होगा। सपोज़ हमें वॉल पे ब्लड स्टेन मिला है तो हम ये सोचेंगे, इस तरह से सोचेंगे कि हाँ, डेड बॉडी यहाँ पे खड़ी होगी, इसीलिए ब्लड स्टेन्स है, मतलब कि जो पर्सन था वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर डेड बॉडी है तो वो यहाँ पे होगी, है ना, इसीलिए वो ब्लड स्टेन वॉल पर आए हैं, वो हम देखेंगे। तो इस तरह से हमारी हाइपोथेसिस बनती है कि उसको जो इवेंट्स थे वहाँ पे हुए होंगे उनको रिक्रिएट करना अपने अकॉर्डिंग। और अगर हमारे वो जो इवेंट्स हैं वो हमारे रिजल्ट से मैच करते हैं,
ठीक है। अगर हमने सोचा है कि बुलेट यहाँ आके गिरी है, ठीक है, यहाँ आके लगी है और हमें जो कार्ट्रिज केस है उसी के आसपास मिला है, तो ये हमारा रिजल्ट है कि हाँ हमारी हाइपोथेसिस ठीक है। उसके बाद है प्रेडिक्शन मेकिंग, दैट इज सेम। रिकंस्ट्रक्शन टेस्टिंग, इट इज़ द टेस्टिंग कि हाँ हमारी हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं। देन डेटा एनालिसिस एंड ड्राइंग कंक्लूजन, तो उसके साथ हम डेटा को एनालाइज करेंगे, सारे टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पर आएंगे। और अगर हमारा कंक्लूजन सब कुछ पूरा मैच करता है, ठीक है, विटनेसेस के साथ जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी मैच करती हैं, तो मीन्स हमारी हाइपोथेसिस ठीक थी। और अगर मैच नहीं करती है तो हम फिर से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करेंगे और क्वेश्चन फॉर्मुलेशन इस स्टेप से दोबारा स्टार्ट करेंगे इन अ साइकिल। और अगर हमारा सब कुछ ठीक होता है तो हमारा थ्योरी डेवलप हो जाती है और केस सॉल्व हो जाता है। तो जैसे कि आज हमने डिस्कस किया है कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं बायोलॉजिकल एविडेंस की। तो फर्स्ट हमारा हमने देखा कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना है, और अगर वहाँ पे कोई भी बॉडी है, लाइक कोई लाइव विक्टिम है, तो हम उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम अपनी क्राइम सीन को सिक्योर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कोर्डन टेप। उसके बाद हम वहाँ पे जो भी लॉग शीट है वो बनाएंगे कि जिससे हमारी जो एंट्री है रिस्ट्रिक्ट कर सके, और हम अपने पास एक डेटा लिख सके कि हमारे पास यहाँ पे क्राइम सीन में कौन एंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, उस अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में हमने 3 टाइप्स पढ़े, स्केचिंग, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। उसके बाद हमने किया चेन ऑफ स्टडी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। चेन ऑफ कस्टडी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि इस एविडेंस की कस्टडी किसके पास है, ये एविडेंस कौन हैंडल कर रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कौन कलेक्ट कर रहा है, वो सारा डेटा जो है चेन ऑफ कस्टडी में आता है। और आईओ कौन थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन थे। उसके बाद कलेक्शन देखा हमने कि कलेक्शन कैसे करते हैं। और अगर हमारे पास सपोज़ काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है, सपोज़ एक वुडन टेबल है, उसके ऊपर हमारे पास कोई एविडेंस है, ब्लड स्टेन है, कोई लिक्विड है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा पीस कलेक्ट करेंगे। और अगर छोटा ही एविडेंस है, लाइक स्मॉल इन साइज़ है, तो उसको एज इट इज़ एंटायरली ही कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हम एविडेंस को मार्क करेंगे, एविडेंस मार्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम जो अपना डेटा को फिर से एनालाइज करेंगे, सारी चीज़ें मिसिंग तो नहीं है, सब कुछ हम अपना मैच करेंगे जो हमने पहले डॉक्यूमेंटेशन की है उसके साथ, और हम अपनी क्राइम सीन को रिलीज़ कर देंगे। एंड उसके बाद है हमारा लास्ट स्टेप, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में हम थ्योरी बनाएंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है, और अगर ये हमारा टेस्टिंग रिजल्ट्स के साथ मैच करता है तो मीन्स हमारी हाइपोथेसिस ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट अंडर बायोलॉजिकल एविडेंस। Thank you, and mail your doubts, queries or suggestions to thinksaksh@gmail.com in context with forensic biology.